नमस्कार 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 मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में konnichiwa, in French bonsoir, Pradeep ji. Abaria ko jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Now, Pradeep ji, the thing is, we've got Mr. Rahul Gandhi, the leader of the opposition, yes, here in Maharashtra. He's gone to Parbhani. He's gone and met that gentleman who died in police custody. Yes, yes. And Somnath Suryavanshi. सोमनाथ सूर्यवंशी जी, और उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला है। ये कहा है कि भाई ये तो मर्डर है, पुलिस ने इनको मारा है, ये किया है, वो किया है, वो किया है। और सामने से देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि ये तो बड़ी डेफेमेटरी चीज़ है यार, ये क्या है, ये तो मानहानि वाली चीज़ है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म तो होने दीजिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मानते हैं, बिकॉज इट्स मैंडेटरी। कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड द पर्सन, द पुलिस सेज ये सफर्ड फ्रॉम अ हार्ट प्रॉब्लम। But it's fine, sir. Rahul Gandhi, as an opposition leader, is playing his part very well. That's right. You need to put the ruling party on its heels. Keep them running. On Justice has to be yes. ensured. Fair play has to be established. And the other thing also is, of course, that we finally got all the portfolios distributed and given, and everybody's happy, or so it seems. Apart, of course, from Mr. Chhagan Bhujbal. Chhagan Bhujbal Sahab is not happy, but then I am reasonably certain Mr. Ajit Dada Pawar and the rest of the people will, of course, shake hands with him and bring him back. But sir, what happened in the elections also is not. Sameer Bhujbal was NCP के यहाँ के अध्यक्ष। जी। NCP का अध्यक्ष है। He's got a responsible post where Mumbai is concerned. मुंबई का अध्यक्ष बना दिया उनको। और नवाब मलिक की जगह पे। During the elections, without telling, वो in fact first went to Sharad Pawar ji asking for a ticket. And then I think there was a huge rumbling. Then suddenly he decided to file himself independent against same Mahayuti के candidate. So, I mean, ये बहुत हो रहा है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी, तीसरे पार्टी, जिधर खड़े हो जाओ, जीत के आओ, कोई हार, I mean, कोई morality रह नहीं गया है, nothing. But the same, अरे प्रदीप जी, but the same thing happened in Anushakti Nagar, and the same thing happened Anushakti Nagar में तो चलो ठीक है। That's what ये election में बहुत चीज देखने को मिला। Same thing happened over here in ये क्या है अपना, जहाँ से अपने जनाब खड़े हुए थे नवाब मलिक साहब। बिल्कुल। अब राष्ट्रवादी के आप पॉलिसी, अपने आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। आप बीजेपी की आइडियोलॉजी फॉलो करें तो उस पे एकदम अटल रहिए। जी। यहाँ से उधर कूदो, वहां से इधर कूदो। I mean, what is happening? दुरुस्त बात है। So it's become very confusing. So and this thing about Ambedkar, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरीके से आज की तारीख में इधर उधर। Now my point is, nobody is really talking about the core issues with regard to what Bharat Ratna Baba Saheb Ambedkar really stood for. Maybe we should talk about those. Maybe we should see to it that whatever was Ambedkar's dream with regard to all the scheduled castes, scheduled tribes, all the low castes, all the people who had been victims of history, so to speak, in the Indian pantheon. Perhaps we should be talking about that. Perhaps we should be talking about upliftment. We should be talking about economic development. Exactly. We should be talking about equality. We should be talking about social justice. Instead of that, you said this, I said this, आपने ये कहा, आपने वो कहा, and very frankly speaking, I find this to be, in the 21st century, हम लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं यार. Anyway, at the moment with us, I think we've got our very dear old friend, Mr. Vinayak Ambekar from Pune of the Bharatiya Janata Party. Vinayak Ambekar Sahab, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. How are you, sir? Arey, how are you? Sir, fine. Great pleasure seeing you again. बहुत दिनों के बाद अंबेडकर साहब दिखे आप. जी, Ambekar Sahab must have been very busy with the elections. Dr. Surena Malhotra, how are you, ma'am? I'm fine, thank you. Thank you so much, ma'am. Jai Hind, Jai Maharashtra. और नासिर साहब, अरे always a pleasure having Nasir साहब of the Congress with us. Thank you so much. Surena Malhotra ji, ladies first. I'll start with you. Surena Malhotra ji, whatever is happening right now, especially with regard to Ambedkar ji और उसके अलावा बाकी सब जो हो रहा है अभी, आज राहुल गांधी साहब परभणी गए, उन्होंने जो कुछ भी कहा वगैरह वगैरह, और उसके अलावा शरद पवार साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई सबको संभल के चलना चाहिए आज की तारीख में, there should be a balance.
बैलेंस करके चलना चाहिए सब. We should not adopt extreme positions. That's what Sharad Pawar साहब is saying. What is your take on that, ma'am? जरा बोलें, कि please. पवार साहब का ऑलवेज जो उनका दृष्टिकोण रहा है कि जनते की सेवा करें, जनते के जो प्रश्न है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो जैसे अमित शाह जी ने जो कहा संसद में, देयर वाज एक्चुअली नो नीड फॉर ऑल दैट, बट अंबेडकर ऐसे ऐसे कह के और के सब लोग अंबेडकर फैशन के लिए बात करते हैं और आप अंबेडकर की जगह पे आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा. तो ये सब कहने की एक तो जरूरत ही नहीं थी, बट दैट शोज डिसरिस्पेक्ट. why say such a statement or why show disrespect? See, पूरा हम लोग तो अपने पास तो संविधान ये सबसे बड़ा मतलब मानी हुई ये है. हम लोग सब संविधान फॉलो करते हैं. संविधान में इतनी सारी अच्छी बातें लिखी है, संविधान में सब समानता है. सो ये फॉलो करने के बजाय ये क्यों नहीं अम्बेडकर जी को मान दे, महामानव तो हम लोग उनको बोलते ही है. तो वी आर अ सेक्युलर पार्टी, सो वी बिलीव दैट सब हमारी पार्टी तो हम बात करती है कि किस तरह के लोग हैं, सबको अपना हक मिलना चाहिए. I think there is some It's all right, ma'am. We can hear you. yeah. So ये सब चीजें बोल के फिर नेचुरली अपोजिशन भी बात करेंगे, तो ये सब दिशा भूल इधर उधर की बातें जब हो रही है, उससे अच्छा अब लोगों के जो विकास के काम जो रहे हुए हैं वो सब काम करें. और क्या हो रहा है, मतलब अभी गृह मंत्रालय शुड बिकम स्ट्रॉन्ग. महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, कितनी सारी मतलब चीजें हो रही है, इसके ऊपर ध्यान देना तो चाहिए. अभी राहुल गांधी के ऊपर फटाफट एफआईआर हो जाती है, बट यहाँ तो इतने मतलब यू नो आई मीन ह्यूमैनिटी को कालीमा लगाने वाली चीजें जो होती है उसमें अभी तक कुछ ठोस सबूत किसी के अगेंस्ट नहीं मिल रहे, कुछ एक्शन नहीं ली जा रही है. जो मतलब ट्राई कर रहे हो लोग लेने की, बट जो फास्ट होनी चाहिए. इतना मतलब ऐसे डरावनी चीजें जब हो रही है, भीड़ में हो रही है, परभणी में हो रही है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स भी है, तो भी कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है. अभी परभणी के केस में तो एक मैं बात बोलना चाह रही हूँ. द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज वेरी क्लियर दैट द पर्सन डाइड ऑफ शॉक ड्यू टू मल्टीपल इंजरीज. और यहाँ पे मतलब उसको डिविएट करने की कोशिश हो रही है कि जो इंजरीज है वो मतलब क्रॉनिक इंजरीज है, पहले के इंजरीज है. हाउ कैन दैट बी? पर्सन डजंट डाई ऑफ शॉक if they have some chronic injuries. Person dies of shock at that time when there is the injuries are being made on his body. Inflicted, yes. Yeah, it is inflicted. That's and you are a doctor yourself, ma'am. Yes, exactly. And you are a doctor yourself. You would know. Exactly. I'm a pathologist. I have done so many postmortems. So I think I know my medical knowledge. So if that is a thing, then why there is a delay in giving justice? So, ma'am, I'm asking you one thing. I want to ask you a technical question, ma'am. Yes. So, is it not possible, from whatever I know, I've covered crime too earlier, way back in 81, 82. Point is, in a post-mortem, it is usually very easy to make out whether this is an old injury or a newly inflicted one. Exactly, absolutely. Absolutely, you can make out. And old injuries will not give shock. It doesn't happen. Shock is when a person is, he is there is a lot of pain inflicted, pain which is absolutely bad pain, so person cannot really tolerate that. So that is the time when he goes into a shock. So that it is an obvious thing. So that whatever it is, who has given him that, whatever that other things, I'm not commenting on that, but it remains it is sort of an obvious thing. Sharad Pawar sahab went to Parbhani. Yes. He sat them with the people who are affected. He talked to them. He went to Beed में गए एंड संतोष देशमुख जी के जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे वार्तालाप किया. He said justice has to prevail. और उन्होंने कहा कि कास्ट वॉर, he talked about a caste war prevailing in Beed, Sharad Pawar sahab. And he also said I will give assistance, financial assistance to the affected where education is concerned. मैं पूरे जिम्मेदारी लेता हूँ. Now Pawar sahab is on the field. He's on the field wherever these things are happening. He's out. Now you think justice will prevail? Sharad Pawar sahab खुद खड़े हैं वहां पर. शरद पवार साहब खुद खड़े हैं. उन्होंने फडणवीस साहब को फोन भी किया है इसके बारे में बताने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए कि ये सब फास्ट इसकी जांच होनी चाहिए. भीड़ मतलब एज पवार साहब सेड कि भीड़ वाज सो फेमस फॉर सम शुगर इंडस्ट्रीज एंड पीपल, मतलब बहुत अच्छी चीजें पहले होती थी और अभी ये क्या हो गया है.
you know, when we saw the body, I'm a doctor, but yet by reading, seeing that the photograph, even I got tears in my eyes. I mean, we never wish that such a thing happens to anybody, such a young person. And that also, he was not directly connected with the whole thing, you know. एक खंडनी का मामला था, वो जाप पूछने गया और बेचारे की ये हालत कर दी. ये यहाँ पे तो इनफैक्ट अभी चलो सत्ता उनके पास है, तो उन्होंने फटाफट उसमें कुछ एक्शन लेके वाल्मीकि कराड़ अब तक, you know, डॉक्टर मल्होत्रा, वाल्मीकि कराड़ अब तक अरेस्ट नहीं हो गया, आवाज चिल्लाते रहे. Exactly, that is really bad. I mean, in fact, they should do it fast and लोगों को एक confidence देना चाहिए कि हम लोग ठीक है, हम लोग कर रहे हैं. But then that is not happening. Let's go to विनायक अंबेकर साहब. विनायक अंबेकर साहब, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ हुआ नहीं, ऐसा कहा जा रहा है. और सामने से जो सर पूरी बात सुनने, सामने से जो बात आ रही है कि भाई तहकीकात तफ्तीश जारी है. मुझे अगर याद है, आपको भी याद होगा कि खैरलांजी कांड में वहां पर भी तकरीबन ऐसा ही हुआ था. वहां पर तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा देर लगा दी गई थी. आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? विनायक कोई कहने की जरूरत नहीं है. यदि आप जब इंफॉर्मेशन देते हैं आपके व्यूअर्स को तो अच्छी तरह से देंगे तो मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ने उल्लेख किया कि शरद पवार उधर गए थे, उसके बाद में तुरंत अजित पवार जी भी गए थे. इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, सो योर पार्टनर विल सेइंग शरद पवार गए थे, ही शुड आल्सो से कि अजित पवार भी गए थे, शीर्षक साहब भी गए थे, अंबेडकर साहब, इवन संजय शीर्षक हुए थे. वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बात मत कीजिए. एज ए जर्नलिस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डोंट गिव पार्शियल इंफॉर्मेशन. So basically, when a deputy chief minister of a state visits someone, you should mention that. If you are mentioning Sharad Pawar, why you are not mentioning Ajit Pawar? विनायक अंबेडकर साहब, the point is वाल्मीकि कराड़ का नाम एफआईआर में है एक्सटॉर्शन के लिए. अब तक अरेस्ट नहीं हो गया वाल्मीकि कराड़. सवाल का जवाब दीजिए. When you are mentioning Sharad Pawar, why you have not mentioned? I agree to you. I am saying अजित पवार जी के, संजय शीर्षक जी के, Deputy Chief Minister of Maharashtra. Again, you are not taking name of Ajit Pawar. चलो, I accept it. We didn't take. झगड़ा है क्या? नहीं, समझ गया विनायक अंबेडकर जी, आप सही बोल रहे हो. He also went there, but why is he not action? When a deputy chief minister visits, can you say कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उधर जाके खुद उनको मिलता है, तो ये आपके आंख में ये कुछ भी नहीं हुआ ऐसा चीज है क्या? तो आखिर में सर एक्शन क्या हुआ ये तो बता दीजिए. अंबेडकर साहब, बात है कि वाल्मीकि कराड़ गठन हुआ है, उसके बाद में उसके जो सब इंस्पेक्टर है उसको निलंबित किया है. दोनों घटनाओं का जांच पूरी तरह से ऑर्डर किया गया है. अभी जब मामला जांच में है तो मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा उसके ऊपर. वो जो जांच में सामने आएगा, सबके सामने, आपके भी आएगा, मेरे भी आएगा. तो वंडरफुल सर. सो विनायक अंबेडकर साहब, विनायक अंबेडकर साहब, ये तो चलो स्पेसिफिक केस हो गया. आई कैन अंडरस्टैंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड यू डोंट वांट टू कमेंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. लेकिन सर ये तो बताएं कि आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, या आपके मुताबिक इसके बारे में कुछ ज्यादा राजनीति हो रही है? विनायक अंबेडकर साहब, देखिए, समाज में जो दुखद घटना है, गलत घटना है, वो हमेशा होती रहती है. आजकल राजनीति ज्यादा हो रही है, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है. जो होना है समाज में वो तो होना ही है. अभी आपने संभल की घटना को देखा है, वो यूपी में हो रही है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे. मगर जिस जगह पे गलत घटना होती है उसको गलत ही बोलना चाहिए. उनके राज में होता है, हमके राज में नहीं होता है. आपके हमारे टाइम में नहीं होता था, अभी ज्यादा होने लगा. इस कोई चीज को, ये कंपैरिजन को कोई मतलब नहीं है. जो घटना हुई है उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए. जो कल्प्रिट है उसको शिक्षा होनी चाहिए. उसमें कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए. अंबेडकर साहब, डिले इन एक्ट, दैट इज वन थिंग, बिकॉज पूरे महाराष्ट्र देख रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन धनंजय मुंडे एंड वाल्मीकि कराड़. वाल्मीकि कराड़ अगर मर्डर केस में उनका नाम नहीं है, बट एक्सटॉर्शन केस में उनका नाम एफआईआर में है. उसके बावजूद द डिले इन अरेस्टिंग हिम, प्रश्न लगता है कि फडणवीस साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि एक्शन विल बी टेकन. कोई भी हो, कोई भी नहीं, इवन फडणवीस साहब ने बोले अजित पवार, बट फिर भी अरेस्ट नहीं हो रहा. वाल्मीकि कराड़ इज क्रिएटिंग एक ऐसे शक के दायरे में खड़ा कर देता है कि व्हाई वाल्मीकि कराड़ नॉट बीइंग अरेस्टेड. एफआईआर में नाम है फिर भी अरेस्ट नहीं हो रहा है.
देखो, किसी को अरेस्ट करना या न करना तुम्हारे और हमारे विल के ऊपर मंजूर नहीं रहता है। उसकी एक न्यायिक जांच, जब मैं बोल रहा हूं कि शुरू हो गई है, तो पुलिस जिसको लगे उसको अटक करेंगे, अरेस्ट करेंगे। उसमें इसको नहीं हो रही, उसको नहीं हो रही, ऐसी बात को कोई ये नहीं है, मीनिंग नहीं है। वाल्मीकि कराड उस घटना में खुद वैयक्तिक रीत्या सबमिट ये है कि नहीं, इन्वॉल्व है कि नहीं, ये पुलिस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके बाद में अरेस्ट होएगा। और धनंजय मुंडे ने इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं की है। हालांकि मैं धनंजय मुंडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बारे में जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी, ही पर्पजफुली ही एब्सटेंड फ्रॉम दैट, क्योंकि उसका कुछ दबाव है इस चर्चा में, ऐसा उन्होंने नहीं प्रेजेंट किया। तो मैं समझता हूं कि ये उनके अच्छी बात है कि निष्पक्षता से जो जांच होनी चाहिए उसको उनका पाठिंबा है। लेकिन यहाँ पर सर जो काउंसिल में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अंबादास दानवे, उन्होंने कहा है कि सरकार डर रही है जो मेन अक्यूज है उसको अरेस्ट करने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है सर अंबादास दानवे जी ने। उनका कोई आकाशवाणी है या उनका कोर्ट रूलिंग है या उनका कोई जान पहचान है, उनके पास कुछ प्रूफ है सरकार डर रही, इसका आपके पास कोई प्रूफ है? ये कहां से बात है? फ्लोर ऑफ द हाउस। हाँ, तो ठीक है ना, ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द हाउस इसकी जांच हुई है और उसकी चर्चा हुई है, और देवेंद्र जी ने ऑन द सेम फ्लोर ऑफ द हाउस ये बोला है कि इसकी निष्पक्षता से जांच होगी। निष्पक्षता से जांच होगी, नंबर एक। नंबर दो, नाउ वी कम टू द रियल इशू। द पोर्टफोलियोज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, everybody's got ministries. The only person who seems to be somewhat unhappy is our old friend छगन भुजबल साहब। और इसके बावजूद कि देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा छगन भुजबल जी की बहुत तारीफ करते हैं, तो सर उसका do you think that will be solved? I know you can always say that it's a problem with regard to the NCP Ajit Pawar, but all the same it does lead to a situation where there seems to be some sort of dissent going on. Sir, डेफिनेटली नॉट। देखिए, हर कोई व्यक्ति जो है राजनीति में उसका एक रोल रहता है, उस रोल के हिसाब से उसको भूमिका दी जाती है कि जिसका जिधर सुटेबिलिटी है। तो आज ही बात न्यूज आई है कि छगन भुजबल जी को नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भूमिका मिलेगी। अभी यह न्यूज है, जैसा मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूं या बिलीव ना करने का भी कोई चांस ये नहीं है, रीजन नहीं है। तो जो होता है अपने सामने आएगा। आज के तारीख के कोई ये है डिससेटिस्फैक्शन है, अभी मेरे को पद नहीं मिला तो मैं नाराज हूं, इसको तो मतलब पर्सनली इट्स ओके, बट उसमें कोई बड़ा पार्टी में डिसेंट है, गवर्नमेंट में डिसेंट है, ऐसा मतलब लेना गलत रहेगा। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है, अगर किसी को कोई मंत्री पद नहीं मिला है तो वो खुश तो नहीं होगा, नाराज ही होगा, दुखी होगा। व्यक्तिगत दृष्टि से वो खुश नहीं होगा, ये तो बात बराबर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मुंगटीवार साहब हो गए, जैसे सही बात है, सही बात है, भुजबल साहब हो गए, ऐसी का एंड ही हैज एवरी राइट टू फील लाइक दैट, एब्सोल्युटली। और जस्ट वन स्मॉल थिंग बिफोर आई गो टू नासिर साहब। सर, परभनी में आज राहुल गांधी साहब थे, और राहुल गांधी साहब ने कहा है कि ये जो सूर्यवंशी साहब हैं इनका तो कत्ल हुआ है, पुलिस हैज डिलिबरेटली किल्ड हिम, ही हैज सेड सो। राहुल गांधी का हर जबान हर जो वक्तव्य रहता है वो ऐसा ही रहता है। ही इज द जज, ही इज द एडवोकेट, ही इज द पॉलिटिकल लीडर, ही इज एवरीथिंग। कांग्रेस में सुप्रीम है, पूरी पार्टी उसने परचेस किया है गांधी घराने ने, तो वो जो मन में आता है वो बोल सकते हैं, उसको कौन रोकता है? लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, ही हैज एवरी राइट टू स्पीक एनीथिंग, बट हु टेक्स हिम सीरियसली, दैट इज द क्वेश्चन। राइट, हु टेक्स हिम सीरियसली। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू नासिर साहब। नासिर साहब, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को परचेज किया हुआ है, और हु टेक्स हिम सीरियसली, ऐसा विनायक अंबेकर साहब का मानना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं पुणे से। नासिर साहब प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। उनकी मर्जी है, वो भी लोकतंत्र में आजाद है, कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है, मगर हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टियां तोड़ी, लोगों के घर में आगे लगाई, वो हमने काम नहीं किया है। कि चाचा को भतीजा से तोड़ के सत्ता में आ जाए, एक नाथ शिंदे को तोड़ के सत्ता में आ जाए, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में वो अध्यक्ष भी बने थे, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने, और लोकतांत्रिक तरीके से ही कांग्रेस में अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया है। तो उनकी एलिगेशन का मैं जवाब नहीं देता हूँ,
मगर उनके एलिगेशन पे एक बात मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा पुलिस अपनी काम कर रही है, पुलिस पे एतबार करिए। तो सुशांत सिंह के केस में जब पुलिस काम कर रही थे तब आपके बिहार में इलेक्शन में क्या प्रचार करे? महाराष्ट्र की पुलिस दाऊद इब्राहिम के लिए काम करती, यही आपके अल्फाज थे। महाराष्ट्र के पुलिस को दिन रात अपमान करते थे, हर चैनलों पे बैठ के घंटों घंटों आप उसके रिपोर्ट मांगते थे, उस पर एतबार नहीं करते थे, वो सीबीआई को दे दिया। और कौन से आज तक सुशांत सिंह के केस का किसी को पता है वो कहाँ चले गए? जबकि उस समय की महाराष्ट्र की पुलिस उसी समय ईमानदारी से काम कर रही थी, पर महाराष्ट्र के पुलिस पे आपने एतबार नहीं किया। आपको किस मुंह से आज उस पुलिस के बचाव में आप खड़े हैं, उसकी जवाब देना पड़ेगा। तब पुलिस झूठी थी या आज झूठी है, ये आज भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। संविधान के बात करने वालों को आप पुलिस कस्टडी में मार डालो तो ये हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या इसमें तकलीफ आती है? बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आपने इस तरह के अल्फाजे यूज कर रहे हैं तो हम आपके खिलाफ क्यों ना बोले? बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना आपने फैशन बना दिया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी का आपने रोज अपमान करते थे, आज बाबा साहब अंबेडकर तक चले आए। आज भी देखिए महाराष्ट्र में आज भी महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। कोई गायकार सिंगर बोलता है कि वो भारत के राष्ट्रपिता नहीं है, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है, पर भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मुखालफत नहीं की। कोई पार्टी कांग्रेस है जो बोलती है वो मुखालफत कर रही है। तो इसी तरह बाबा साहब अंबेडकर पे अमित साहब ने जिस तरह की अल्फाज यूज किए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कोई एक समाज के नेता नहीं है, एक समाज के नहीं है, वो इस देश के संविधान निर्माता है। वो उन गरीबों, वंचितों, समाज के बिछड़े हुए लोगों की आवाज है जो समाज में उन्होंने एक ताकत दी। वो क्यों समझेंगे कि किस तरह की परेशानियां उन्होंने झेली है? अरे आपको बाबा साहब अंबेडकर को समझना है तो उनके बचपने में जाइए। जिस स्कूल में जाते थे वहां पानी नसीब नहीं होती थी, जिस स्कूल में जाते थे वहां सीढ़ियों के नीचे बैठा है, तो उनके तकलीफात को भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति समझने वाली नहीं समझ सकती है। कितने कठिनाइयों से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने एक ताकत समझा शिक्षा का, समानता का, एजुकेशन, उसके बदौलत वो समाज में एस्टेब्लिश होते हैं। आज उस भगवान को आप जब गाली दोगे तो क्या हम चुप रहेंगे? हम आवाज उठाएंगे। आप हम पे एलिगेशन लगाने से ये आपके पाप धुलने वाले नहीं है। जो आपने ये गुनाह किया है ये दलित समाज के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानवता समाज के खिलाफ है। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी परभणी में थे, उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी जी जो संविधान को बचाना चाह, प्रोटेक्ट करना चाह, आरएसएस और बीजेपी wants to destroy the constitution। मगर यहां पर आरएसएस को किस लिए राहुल गांधी जी दोषी ठहरा रहे हैं संतोष ये सूर्यवंशी जी के मैटर में? आपको नहीं लगता कि सोमनाथ सूर्यवंशी जी एक नेचुरल कॉज है? आरएसएस कहां आ गए इसमें? तो हर चीज में आरएसएस को कैसे आप घसीटते हो? क्या जरूरत है? आरएसएस को इसलिए हम लेते हैं कि आरएसएस दो चेहरा है, एक दिखावटी चेहरा, एक दिखाने की अलग चेहरा है और बोलने की एक अलग चेहरा है। अभी लोग किसी ने संबल की बात की तो वहां क्या कहते हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। पर वो कौन से नेता को टारगेट कर रहे, उस नेता का नाम कभी आरएसएस ने नहीं लिया है। उस आरएसएस ने उस नेता के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। हर मंदिर के नीचे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वालों के खिलाफ कभी आरएसएस ने बोला नहीं है। सिर्फ टीवी पे एक बाइट दे देने से वो मामला सुलझ नहीं जाता है। आपने कट्टर तरीके से निंदा क्यों नहीं किया? आपने उन नेताओं का नाम क्यों नहीं लिया जो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, जो संबल के अंदर नफरत फैला रहे हो? अरे तमाम मंदिर मौजूद थी, पूजा करने वाले आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इससे किसको तकलीफात है? किसी को हिंदुस्तान में तकलीफात नहीं है। ये गंगा जमुना की तहजीब है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर आरएसएस ने जब नफरत की बीज बोई है, जो संगठन उनके साथ काम कर रही है, चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू सेना हो, पता नहीं कई तरह के उनके फ्रेंचाइजी खुली हुई है, वो लोगों ने समाज में नफरत फैलाई। इसलिए आरएसएस को बोलते हैं, आरएसएस एक पेरेंट बॉडी है, ये उनकी दूसरी फ्रेंचाइजी है, जितनी कंपनियां उनके लिए काम कर रही है। तो वो बोलती है एक तरफ हम पॉलिटिकल नहीं है, दूसरी तरफ 1978 के बाद वहां से तकरीबन 80% हिंदुओं का पलायन हो गया और ये मंदिर सारे बंद थे 1978 से लेकर के अब तक। और 22 के 25 मंदिर अब जाकर के डिस्कवर हुए हैं और उनको खोला गया है। 19 वहां पर जो पवित्र कुएं होते हैं, मंदिर के साथ जो कुआं होता है वो डिस्कवर किए गए हैं, वो भी बंद कर दिए गए थे। तो उसमें तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए सबका कि अगर कांग्रेस ने नाइंसाफी हुई है, अरे पूरी बात सुन लो ना सर, पूरी बात सुन लीजिए। नाइंसाफी हुई है तो ये
अगर हिंदुओं का है वापस मिलना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है बताएं नासिर साहब। मगर किस हिंदू के साथ ना इंसाफी हुई है संभल में? एक बंदा भी आपके सामने पे नहीं आके चैनल पे बोलता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोलती है। जिसका मंदिर है वो खुद बोलता है कि मैं अपने काम की तलाश में बाहर गया था, मैं मंदिर वैसे ही छोड़ के गया था। किसी हिंदू ने नहीं बोला कि मैंने अपनी इस वजह से, मैं मुसलमानों ने मुझे तकलीफात दी इसलिए मैं वहां से रनवे किया, किसी ने नहीं बोला। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ये अल्फाज है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। क्या है कि आपको पता है, आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट पढ़ा होगा, 39,000 ईच, यानी जितने भी यूपी के लोग हैं उन पे कर्ज है, इतने कर्ज के दलदल में वो डूबी हुई है। तो उनके पास वो पता नहीं है कि क्यों इतनी हिंदुस्तान में कर्ज से डूबी हुई सरकार तो उस कर्ज को लौटा ना सके, उस कर्ज के बदले लोगों को जॉब ना दे सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना कर सके, किसानों के लिए काम ना कर सके, तो वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके आएगी। अरे संभल में जितने मंदिर थे वो आज भी कायम है। पूजा, अगर मंदिर में कोई पूजा करने ना जाए तो उसमें मुसलमानों की क्या खता है? अगर कोई मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने, एक मिनट सुन लीजिए, 45% कायम है। हिंदूज थे। नहीं, आज सुन लीजिए, 78 सुनिए ना, में, प्रदीप आज भाई 20% ऐसे नहीं हो होगा। गए, प्रदीप भाई 25% मेरी बात को कम हो खत्म गए। होने दो। आप यूपी के अंदर सुनिए, आप सुन लीजिए ना प्रदीप भाई, फिर आप बोलिए। हाँ। आप मंदिर, आप यूपी में आप जाएं, आज भी 33% मस्जिद वीरान है, वहां नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं है। तो उसमें किसकी खता है? वहां के लोगों की खता है कि हिंदुओं की खता है? आप कितने गांव में जाएंगे, मस्जिद कायम है पर नमाजी नहीं मिलेगा। वो मस्जिद में धूल फाक रही हो, खंडर बन रही हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बट उसके यहाँ लिए पर किसी 40 कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आंकड़े हैं नासिर साहब, 33%। आंकड़े 45% हिंदू थे 78 में, आज 20%, 25% कम हो गए, 25% का पलायन हो गया। तो इसका क्या कॉजेस देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं। आप बिहार में आप पूर्वांचल जाइए, पूर्वांचल और सीमांचल जाइए, सीमांचल में हिंदुओं की और तमाम लोगों की रोज पलायन हो रही है। वहां पे सरकार कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की। आप ट्रेनों में चले जाए पंजाब और दिल्ली की तरफ, रोज पलायन करके लोग मजदूर काम करने जा रहे हैं। वहां पूरी गांव की गांव वीरान है। तो सब अपनी काम की तलाश में अगर कोई चला जाए तो मुसलमान कैसे जिम्मेदार है? अपने काम, अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल को बदलने के लिए कोई गए, ना कि किसी डर और खौफ के माहौल से गए। 8 साल सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से वहां पे सत्ता है, कितने को लाके लौटा दिया, कितने को लाके वहां बसा दिया। कश्मीर का राग यही रोते थे ना, कश्मीर से कश्मीरी पंडित भाग गए, आज कितने कश्मीरों पंडितों को बसा दिया। आज जबकि आज का रिपोर्ट है कि कश्मीरी पंडित खुद कश्मीर छोड़ के चले जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अब कौन जिम्मेदार है? अरे चारों तरफ नफरत तब भी आपने फैलाया, अब भी आप फैला रहे हैं। एक कौम को टारगेट कर देने से हिंदुस्तान नहीं बदल जाएगा। एक कौम को टारगेट करना आपकी हो गई, क्योंकि आपके पास मुद्दों की कमी है, आपके पास मुद्दे नहीं है आपको। जी, let's get Vinayak Ambekar साहब in. Dr. Surendra Malhotra, I'm coming to you for the summing up. But Vinayak Ambekar साहब, आपने नासिर साहब को सुना, उनका संभल में इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हिंदू वहां पे नहीं आ रहे तो हम क्या करें? आप बताएं सर प्लीज। बीज की चोरी कर रहे थे, मस्जिद से 100 घरों को कनेक्शन दे रहे थे। उनका जो एमपी है उधर का, उसके ऊपर 1.5 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी की डिफॉल्ट की नोटिस ले जाती है। ये भी हिंदुओं ने किया, ऐसा ही नासिर साहब का कहना रहेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट लोग हैं कांग्रेस के, ये ऐसा ही डुप्लीकेट बातें करते रहेंगे। और हमारे पास मुद्दे नहीं है, क्यों है? यूपी की इकोनॉमी जो है वो भारत में दूसरे स्थान पर आने के कगार में है। अभी यूपी की इकोनॉमी देखिए आप, यूपी में रोड कितने डेवलप कितना इकोनॉमी है आप बताइए, कितनी जीडीपी है आपके मुझे उत्तर बात प्रदेश करने की? दीजिए। अरे जरा आपकी नासिर साहब कांग्रेस उनको बोलने की दीजिए नीयत ना, बदली है, बीच बीच में बात मत कीजिए। बोलिए सर, शर्म आनी बोलिए। चाहिए आपको। हाँ, तो यूपी की इकोनॉमी जो है, यूपी में आज सबसे पहले जब योगी जी ने राज्य शासन शुरू किया तब खाली 2 एयरपोर्ट थे, आज 8 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। यूपी में जितने भी हाईवेज है, सुपर हाईवेज है, एक्सप्रेस वेज है, वो भारत के किसी भी राष्ट्र में आज नहीं है। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, जिसको हॉलीवुड, बॉलीवुड सब लोग उधर आने वाले हैं। और यूपी में जो डेवलपमेंट हुई है वो यूपी के लोगों को मालूम है, कांग्रेस को कभी भी दिखेंगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस अंधी हो गई है। गांधी फैमिली का जो उनके ऊपर जो काला चश्मा लगा है इटाली में, वो इटली मेड चश्मा से उनको अंधापन आ गया है, तो उनको कुछ दिखेगा नहीं। तो मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, नासिर साहब कितना भी भाषण दे, उसका जमीन पे जो यूज है, जमीन पे जो उसका इफेक्ट है वो 0 है। संविधान खतरे में है। अंबेडकर साहब बार बार 2 इलेक्शन में शायद ये नहीं चला, महाराष्ट्र में और हरियाणा में,
तो ये सर्वे के माध्यम से आया कि संविधान खतरे में अब नहीं चलेगा। वो जो संविधान के किताब लेके आते थे, अमित शाह जी ने भी कहा, मगर आज आरएसएस, आज फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान को आरएसएस नष्ट करना चाहता है। नाउ डू यू थिंक दैट राहुल गांधी स्टिल बिलीव्स दैट दिस विल वर्क? राहुल गांधी इज ए फेल्ड लीडर, उसके ऊपर ममता जी का भी भरोसा नहीं है। अभी इंडिया आघाड़ी में को आज उनका जो मणिशंकर अय्यर है उसका स्टेटमेंट आपने देखा क्या, कि देर आर सम लीडर्स आउटसाइड कांग्रेस टू लीड इंडिया आघाड़ी एंड ममता बनर्जी इज ए कॉम्पिटेंट लीडर टू इंडिया आघाड़ी। ये उनके मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं। तो इनके बारे में क्या बोलना है? सब जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं उनको मालूम पड़ा है कि इन्होंने जब भी किसी को पनौती करके बोला था तो खुद पनौती राहुल गांधी है, बाकी कोई नहीं है, और वो कांग्रेस का पूरा सत्यानाश करके फिर रुकेंगे। Sir, as far as Uttar Pradesh is concerned, Uttar Pradesh today is the third largest economy in India. Yes, and it is going to after, be second. After Maharashtra, Gujarat, it is now Uttar Pradesh. Yes. और ये इनको दिखेगा नहीं सर। Yes, but here I must say this. Just 1 second, sir. Please, let me read this out. This is from the Ministry of Finance and Revenue. It's the third largest state economy in India, and it is at US dollar $222 billion. $222 billion. But now this is the very, very interesting part. It is growing almost at the fastest rate in India. Yes. The Uttar Pradesh economy. And I think they are breathing down the neck of Maharashtra. Yes. There is every possibility that if Maharashtra does not watch out, and I think that's really healthy, very frankly speaking, that there's a lot of competition between Maharashtra, between UP, between Gujarat and Tamil Nadu and all these places to become the fastest growing economy in the country. And I think that's really something which we need to be proud of, very, very frankly Yes. speaking. And in yes. the task of making India 5 trillion economy, UP, Maharashtra and Gujarat will give a lion's share. And Tamil Nadu. Yeah, and Tamil Nadu must, also, yes. Because Tamil Nadu, because at the end of the day, if Maharashtra goes on to become a $1 trillion economy, India will cross $5 trillion. There's no Yes, doubt sir. about it. And if UP comes close to even $500 billion, we are through. $500 billion, that means India will be a developed country much, much before. And I think that's really amazing. But Right. but there is a problem here, sir. There is a small problem here, Vinayak Ambekar साहब. In terms of per capita, we are lagging behind. क्योंकि क्या है सर, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप जितना मर्जी ग्रोथ कर लीजिए, unless and until our growth is about 14%, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, और जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी सर, गरीबी वैसी की वैसी रहेगी. विनायक अंबेकर साहब, प्लीज. यस, अभी भारत का जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो पॉलिटिकली ये जो हम कर रहे हैं कि सबको डोल आउट दे रहे हैं, ये डोल आउट देने से क्या होता है कि जो पर्सन की इनकम कमाने की जो इच्छा है वो कम होती जा रही है. Correct. अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोकण एरिया है, कोकण में ये एक सच्चाई है कि जो खेत है उसकी बंटवारा होके छोटे छोटे खेत बचे जी. हैं, उधर राइस उगाना फिजिबल नहीं है, वर्केबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, मगर उसका इफेक्ट ऐसा हुआ है कि जो पॉपुलेशन को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर, तो उसका उल्टा इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि उन लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है. Correct. Absolutely. इसके वजह से हमारा नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है वो नहीं बढ़ रहा है. So there has to be a balance. We have to find a balance. Yes. Let's be very, Yes. very clear. We have to Yes. find a balance between doles and ability of people to work. Correct. That's it. That's really and truly important. Otherwise what will happen is, क्या होगा? Everybody will only depend on doles. Right. That's what is going to happen. तो लोगों में जो काम करने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत कम हो जाएगी, मुझको ऐसा लगता है. But anyway, I'm sure people are working on it. जी, Dr. Pradeep ji, Sharad please. Malhotra ji, Sharad Pawar ji said Markadwadi is going to be a revolution. Yes. Markadwadi से जय प्रकाश नारायण का मूवमेंट उन्होंने कहा कि शायद लॉन्च हो जाएगा. उन्होंने क्या कि दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन फ्रॉम मरकड़वाड़ी, और पूरे देश इस रेवोल्यूशन को देखेंगे. नाउ डू यू थिंक दैट पंच इज स्टिल देयर? बिकॉज पवार साहब बोले थे और सब लोग आशा कर रहे थे कि मरकड़वाड़ी से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन निकलेगा. राहुल गांधी जी भी जाने वाले थे. तो हाउ डू यू सी इट इज स्टिल ऑन दैट मरकड़वाड़ी? डॉक्टर Malhotra. I think it is still on.
I think it is still on. But at the same time that मैं again I'm telling that जो भी अभी जो जैसे पवार साहब भी बोल रहे हैं कि अभी लोगों के लिए जो काम है जो इम्पोर्टेंट है वो अभी होने चाहिए। अभी जो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे लोगों को जो डोले देते आए हैं, वही तो हम लोग उस समय बोले थे कि जो लेडीज को ऐसे फ्रीबीज जैसे बांटे जा रहे थे। हमारी पार्टी हमेशा बोल रही है कि लोगों के लिए जो काम है वो काम आप बढ़ाओ। लोगों के लिए जॉब क्रिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ एंड उसको ध्यान देना चाहिए। और अभी जैसे महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है कि जहाँ पे अभी गृह मंत्रालय की मतलब वो जो भी है टाइटनिंग होनी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो सेफ्टी और जो है कि लोगों को मतलब बेरोजगारी से निकालना चाहिए। तो ये अभी इन्होंने बोला कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए, तो वो भी मतलब उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये सब यस देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन दैट कि आप फ्रीबीज भले दो पर लोगों को गलत आदत मत लगा दीजिए। there has to be checks and balances. There has Reward to be and checks and punishment. balances, and that I mean we do agree. So that No, has there is to a go. proposal, ma'am. Let me tell you this. There is a proposal from the government of India where they have said very very clearly now whichever state gives whatever, आपको साथ में ये भी तय करना पड़ेगा जिसको फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को 1,500 रुपए दे रहे हैं महीने का, 2,000 रुपए दे रहे हैं, आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो हाउस होल्ड असल में काम करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम प्रयत्नशील हैं काम करने के लिए, और जो भी प्रयत्नशील नहीं होगा उसका वो डोल बंद कर दिया जाएगा। सीधी बात है। So this is what is coming, by the way. Let me be very frank with you. This is inside information. Nasir साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? No, I want to pose a question to Nasir, if you don't mind. Yeah, please go ahead. नासिर साहब, जैसे विनायक अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि मैक्सिमम हम जो फ्रीबीज देने में उसमें जा रहे हैं वगैरह, मोदी साहब ने कहा कि गरीबी हटाओ इस देश का कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला था, सबसे बड़ा जुमला है जिसको मोदी साहब फुलफिल कर रहे हैं। जो आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने बोला गरीबी हटाना, मगर अभी भी 13 करोड़ टॉयलेट मोदी जी बांध रहे हैं, 12 करोड़ नल से जल मोदी जी प्रोवाइड कर रहे हैं, महिलाओं जो 80 करोड़ लोगों को खाना अभी भी मोदी। तो क्या गरीबी हटाओ आपका एक फेलियर था नागिर साहब, जो आज जाके मोदी जी को कंप्लीट करना पड़ रहा है? जुमला कहा उन्होंने, कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला। कहता हूं ना, झूठ इतना बोलो कि इतना भी सच बोलो कि आपके मुंह पे कोई तबस्सुम ही ना है, झूठ बोलते रहो। इसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी के वक्ता ने बोला और बजाज भाई ने बड़ा जबरदस्त उनको बैटिंग दे दिया कि वो खुश हो गए कि यूपी की इकोनॉमी वो है, दुनिया की वो है, वो उसमें वो गुमराह हो गए। बट 7.8 लाख करोड़ कर्ज है उत्तर प्रदेश पे। एक बार बजाज भाई आप जरा उठाते, आप सही है, आप अच्छी बातें बताइए। विपक्ष का काम नहीं है अच्छी उनके गिनाने के लिए, उनके पास बजट है सरकार के पास, वो दिखाए अपने टीवी पे बजट। पर मैं जो कह रहा हूं 7.8 लाख करोड़ का कर्ज है उत्तर प्रदेश पे, हर व्यक्ति पे 31,000 रुपए का कर्ज है। उस हिसाब ये मैंने 2024-25 का जो बजट पेश किया उसके अंदर खुद उन्होंने साबित किया सदन में, ये नासिर हुसैन नहीं बोल रहा है, ये उनका बजट बता रहा है कि कितना लाख करोड़ का कर्ज है उनके ऊपर, उसके ऊपर नहीं बोल रहे। इन्होंने कहा हाईवे का एक ऐसी जाल बिछा दी, क्या आगरा एक्सप्रेस वे नहीं बना था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बना था, ताज एक्सप्रेस वे नहीं बना, ये सब किसके दौर में बना था? क्या भारतीय जनता पार्टी बना के दी थी वो? क्या वहां पे मेट्रो यूपी में आया वो किसने बना के दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी बना के लेकर आई थी? तो भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ के कभी कुछ नहीं बोलती। आपने 4 बार सवाल किया, बाबा साहब अंबेडकर पे एक बार जवाब नहीं आया, क्यों उस पर अपमान किया? तो अच्छी अच्छी बातें करा रहे कांग्रेस की विरासत को, कांग्रेस की विरासत की वो उज्ज्वला जो है जिसकी कोई काला सपना भी नहीं कर सकता है। हमने उस देश की आजादी की लड़ाई आपके जैसा हमने अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे, तो हमें मत सजाएं कि हम किस तरह से देश के लिए काम करते हैं या राहुल गांधी काम करते हैं। आपने सिर्फ समाज में जो नफरत बोया है उसके ऊपर बात करिए। आप किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है महाराष्ट्र में आपकी सरकार होते हुए, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों विदर्भ में, मराठवाड़ा में तमाम जगह किसान सुसाइड आज भी कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते? कस्टडी के अंदर उसकी मौत हो गई, उसके ऊपर एक बार आपने नहीं बताया। सुशांत सिंह के केस का आज तक क्या हुआ, उस पर आपकी आवाज नहीं निकली। बिहार में जाके महाराष्ट्र को जब आपके नेता गाली देते थे उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप अच्छी अच्छी बातें करें कि यूपी की जीडीपी इतनी इकोनॉमी, आज यूपी के लोग क्या पलायन करना बंद हो गया?
क्या यूपी के अलग बेरोजगारी खत्म हो गई? उत्तर प्रदेश की हालत क्या है आप जाकर देख कर आइए। चंद संबल की बात किया, मैंने कहा संबल में लोग अपने काम के वजह से गए, पर आपने एक बार सवाल नहीं दिया कि वहां के लोग कहां गए, क्यों नहीं लाके बसा दिया आपने संबल में? कौन सी मंदिर को मुसलमानों ने वहां कब्जा कर लिया, उसका नाम बताइए। एक मंदिर ने, आज भी तमाम मंदिर वहां कायम है। मैंने पहले कहा अगर मुसलमान मस्जिद में ना जाए तो किसी कौम की खता नहीं है, उस कौम की खता है जो कौम उस पूजा कर रहे हैं। कैमरे के सामने अगर कोई पूजा करता हुआ धार्मिक नहीं है, वो दिखावा करता है, जिस तरह आरएसएस दिखावा करती है, दलितों से नफरत करती है, वंचितों से नफरत करती है, जंगल जमीन आदिवासियों का जो चीज थी उससे नफरत करती है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। तो आप उस बातों का जवाब नहीं देके अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे तो हम उसका मुखालफत करते रहेंगे बजाज भाई जी। लेकिन जहां तक मगर इसका जवाब दिया नहीं। वन सेकंड प्लीज, जहां तक हाई डेट का सवाल है सर, नासिर साहब, आपको मालूम है अमेरिका का डेट कितना है? इट इज द हाईएस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप परेशान हो जाएंगे देख करके। जब तक किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी में और स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी में जब तक डेट नहीं होगा तब तक इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? सीधी सादी बात है। ऑल गवर्नमेंट्स हैव टू बोरो सर। Every government has to borrow. If a government is not borrowing, that means it's not working. Let me tell you बिल्कुल very सही। frankly. पर लोगों की हालात कितनी है बजाज भाई? Sir, लोगों that की is इनकम कितनी sir, है? that is the कितने टैक्स- perpetual problem. नहीं, Sir, नहीं। वो हिंदुस्तान में perpetual problem है। आपने सुना, आप पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने यही पूछा कि प्रॉब्लम हमारी पर कैपिटा इनकम से, डेवलपिंग इकोनॉमी से नहीं है। इकोनॉमी डेवलप हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू पर कैपिटा इनकम। एक एक हाउसहोल्ड की इनकम जो है वो नीचे जा रही है यार, वहां पर हालत खराब हो रही है। यही तो हमारे राहुल गांधी बोलते रहते हैं कि ये चंद लोगों के लिए काम करने वाली सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये चंद लोगों की कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। यही तो हमारे नेता जब से बोल रहे हैं। आखिर उधारी प्रोजेक्ट एक लोगों को क्यों मिल रही है? सारा हिंदुस्तान की सारी दौलत चंद लोगों के पास क्यों चली गई? तमाम लोगों में, यहाँ के रिसोर्सेस पे हिंदुस्तान के सारे लोगों का हक होना चाहिए, पर सारे रिसोर्सेस चंद लोग पर। ये वक्ताओं के साथ तकलीफात क्या है कि वो अपनी पार्टी लाइन है वो उस पर बोलते रहेंगे, पर उनके अंदर भी ये तकलीफात है कि एक इंसान आसमान के जमीन पे पहुंच जाए और एक इंसान जमीन के तरल के अंदर चला जाए। गरीबी हटाओ पे बोले नहीं नासिर साहब आप गरीबी हटाओ पे नहीं। मोदी साहब ने कहा ये कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला है। मैं कितनी बार बोलूं, मैं एक बार फिर बोलता हूं, 2014 से पहले हमारे कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है संसद के अंदर। आज कितने गरीबी के नीचे चले गए? 20 लगभग बोलते ना 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज गरीबी रेखा के लोग नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अरे हम पे आप बताइए, 2014 से पहले अगर आप कंपेयर करें तो फिर 47 से पहले कंपेयर कर लीजिए। 47 से पहले इस देश में कितनी गरीबी थी, 47 के बाद हमने कितनी खत्म की है। पर इन्होंने, जिनको सब कुछ मिला, इतनी सारी कंपनियां मिली, रेलवे मिली, इन्होंने बेच बेच के भी पूरा नहीं कर पाए। अरे कांग्रेस ने 1000 कंपनी बनाई, हजारों कंपनी में लोगों को रोजगार दिया। इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई है जिसमें लोगों को रोजगार? सिर्फ अडानी अंबानी की सरकारों की कंपनी बन रही है, सरकार की कंपनी नहीं बन रही है। यहां पे सरकार की कंपनियों को तो बेच दिया आपने, तो रोजगार कहां से पैदा होगा? रोजगार पैदा करने के लिए आपको कंपनी बनाना होगा, एमएसईबी को मजबूत करना होगा, जीएसटी में सुधार करना होगा। एमएसईबी आपका कमजोर हो चुका है, एमएसईबी सेक्टर सबसे कमजोरी रेखा पे, आप उस पे बात, आप किस सबसे ज्यादा वर्क कहां से आप लाओगे? वर्क फोर्स के पैदा करने के लिए एमएसईबी, छोटे कारोबारियों को उठाना पड़ेगा तभी रोजगार पैदा होगा। किसा बोलते शहरों से, सुन लीजिए सर, जब आप रोजगार पे बात करें तो अहम मुद्दा है, शहरों को, किसानों को आपको नजदीक लाना होगा, किसानों को फिर से खेतों के तरफ भेजना होगा, किसानों के सुसाइड को रोकना होगा। सर किसानों का लोड शहरों पे आ जाएगा। सर ये पागल जैसी बातें मैं सर 1950 से मैं सुन रहा हूँ सर। ये आप पागलों की तरह बात मत करिए। ये विनायक अंबेडकर जी आप बोलिए, सुनने को आया नहीं हूँ सर। विनायक अंबेडकर जी बोलिए। मुझे हाँ, तो बेसिकली ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट दिखते हैं। अरे सर, हम आपके पागलों को सुनने हम भी नहीं बैठे। आप ऐसी बातें मत करिए, आपके आवाज पे अगर कंट्रोल नहीं है तो आप अभी शो छोड़ दीजिए। ना तो इकोनॉमिक, धमकी मत दीजिए, आपको शो छोड़ दीजिए ना भाई, शो छोड़ दीजिए। किसको धमकी देते हैं? पागल आप होंगे, पागल आपकी नॉलेज है। जो बातें बोल रही है वो गलत बातें बोल रहे हैं, और टीवी पे आके अपना अज्ञान प्रकट करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको तमीज नहीं है बात करने का, आपको माफी मांगना सर आप पहले ये बताएं विनायक अंबेडकर साहब
पागल विनायक अंबेडकर जैसी साहब, बातें आप ये कर जहां रहे तक हैं। कर्ज का सवाल है, कर्ज का अपनी महत्व बात क्या रखिए, है? आप दूसरे पे कमेंट्री मत करिए। हाँ तो बोलने तो दीजिए ना भाई, बीच आप बीच अपनी में बात मत रखिए, बोलो। आपने पर्सनल कैसे अटैक कर सकते हैं आप? हाँ, चलिए, पर्सनल अटैक विनायक करना अंबेडकर जी, पड़ेगा क्योंकि आप नहीं तो गलत मैं बात आप कर करता रहे हूं ना, हैं। मैं आप गलत बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूं आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, अभी सुन लीजिए जरा आराम से। जब विनायक आपको सुन अंबेडकर रहा था ना, जी, मैं आपको सुना ना पूरा। मैं भी मैंने आपके आपको बीच में सुन के टोका, हाथ तो आपने ऊपर कर कैसे रहा बोला था। पागल? मैंने आपको पागल बोला क्या? हाँ, तो आप पागल जैसी बात करें तो पागल ही आप बोलूंगा पागल ना जैसी मैं। बात कर रहे हो। आप अरे, अंबेडकर को गाली दोगे, हम चुप ना रहेंगे? तो बाबा साहब ना अम्बेडकर को गाली दोगे, हम चुप रहेंगे? किसने सर, गाली बातें दी? व्यक्तिगत सुनते टिप्पणी रहेंगे? एक बोलिए दूसरे के कौन ऊपर सी ना गाली दी? करें। आपने दी है, कौन अमित सी शाह ने गाली दी है, दी? फैशन दी है। बोलिए, आपने बोलिए बोला कौन सी अम्बेडकर गाली दी? अम्बेडकर अम्बेडकर। बोलिए अरे ना मैं बोल रहा कौन हूं ना, सी गाली? विनायक सरदार अंबेडकर जी बोला और नासिर अम्बेडकर का साहब, नाम लेना गुनाह है। स्पेशली विनायक अंबेडकर साहब, विनायक अंबेडकर साहब, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। नहीं प्लीज, नहीं, आप जरा जवाब दें सर, प्लीज साहब, प्लीज प्लीज मैं आंसर द क्वेश्चन 5 मिनट मेरी आपको सर, बोलने प्लीज के प्लीज लिए प्लीज टाइम मांग रहा था। प्लीज गो अहेड ये- सर, हाँ, प्लीज गो तो अहेड। देखिए, जिसको इकोनॉमिक्स समझता नहीं उसने इकोनॉमिक्स में बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं सब उसको इकोनॉमिक्स आपको सर समझ बोलिए बोलिए प्लीज। तो इकोनॉमिक्स का बात ऐसा है कि जो भाई साहब बोल रहे थे कि 47 के पहले क्या था, तो 47 से 90 तक जो नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स था उसने इस देश का सत्यानाश कर दिया। 1990 में जो परिस्थिति आई थी भारत के ऊपर, तो सिर्फ 2 हफ्ते का परकीय चलन हमारे पास बचा था। जी। इसलिए माननीय नरसिंह राव जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और जो मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के अर्थ मंत्री थे, उनको नेहरूवियन मॉडल को हटा के पूरी फ्री इकोनॉमी करनी पड़ी। ये जी। बात सच है क्या नहीं है? जी। ये बात सच है। तो उसके बाद में भारत की इकोनॉमी बदली है। उस नरसिंह राव जी के प्रति इनके कांग्रेस के गांधी फैमिली ने बहुत घृणा दिखाई है, मगर नरसिंह राव जी ये मॉडर्न इंडिया के ग्रेटेस्ट प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने पहले देखा। देखिए, चाइना अपने से 2 साल बाद में स्वतंत्र हुई, मगर चाइना ने 1978 में अपनी इकोनॉमी फ्री कर दी। हमने 1990 तक नेहरू जी का मॉडल अपनाया करके हम पीछे रह गए। चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन गई, हम पीछे रह गए। जब जो मनमोहन सिंह ने अच्छी बात की, एक प्रपोजल रखा, नरसिंह राव जी ने उसके ऊपर मान्यता दी, इसके वजह से इंडिया के हालात बदले हैं। जब भी आपके पार्टनर ने बात किया कि गरीबी हटाओ का मॉडल कुछ नहीं था, ये मोदी जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना जब लाई तो 20,30,000 करोड़ रुपए का एक मॉडल सामने पेश किया, जो पेश करने के लिए 5 सीटिंग लेनी पड़ी। जब सोनिया जी जब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का बात किया, ये एक चुनावी जुमला था, उसके बाद में उन्होंने कोई भी प्लान इस देश के सामने रखा नहीं था। यदि रखा है तो मैं जैसा ये डॉक्यूमेंट बता सकता हूं कि ये हमारा गरीब कल्याण योजना का प्लान है, वैसा उन्होंने इंदिरा जी के गरीब कल्याण योजना का प्लान लेके आए। कल मैं फिर डिबेट को बैठने को तैयार हूं, फिर अपन इकोनॉमी में बात करेंगे। तो ये जो इकोनॉमी का सत्यानाश लगा था, अभी आपने देखिए जो इनके रघुराम राजन थे, जिसको वो बहुत सराहते थे और जो भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए थे राहुल जी के साथ में, उन्होंने लास्ट वीक में द प्रिंट करके जो पोर्टल है उसको मुलाकात दी है। इस भाई साहब को वो मुलाकात दिखा दो। उन्होंने बोला है कि 2007-8 में बैड लोन दिए गए, बाद में इकोनॉमी बैड शेप में चली गई। 2008 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसके बाद में लोन देना नहीं चाहिए था। इन लोगों ने भर भर के लोन दिया, जिसको मोदी जी होने लोन करके सराहते हैं कि बाबा इनका ये गलत प्रोग्राम था। इसके लिए सब बैड लोन्स तैयार हो गई। फिर इनके जो रघुराम राजन जी के पहले के गवर्नर थे, उन्होंने उसको मोराटोरियम दे दिया। रघुराम जी राजन का प्रिंट में ऑन टीवी ये स्टेटमेंट है कि ये यूपीए सरकार के गलत कारोबार के वजह से ये मोरेटोरियम दिया जा रहा था। उन्होंने अरुण जी जेटली जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके सामने प्रपोजल रखा कि ये मोरेटोरियम देना अपने अर्थव्यवस्था के लिए गलत है। अरुण जेटली जी ने माना और उन्होंने वो मोरेटोरियम देना बंद कर दिया। इसके लिए 10 लाख करोड़ के बैड लोन्स
जो 15, 16, 17 साल में तैयार हो गए, ये सब 2007-8 में कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन काल में दिए थे, ये लोन थे। तो ये सब इनकी बातें हैं। तो इकोनॉमिक्स में बात करो ना, पॉइंट वाइज बात क्या करो, अपनी बड़ा इकोनॉमिक्स लेक्चर देने से एक बार इकोनॉमिक्स की कुछ बात की हो तो बताइए। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज देता हो वो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ा रहा। जो 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज पे जिंदा रखता हो वो बोलता हम गरीबी मिटा दिया। वो बात, अरे विजय माल्या को भगाने वाला शख्स हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। ललित मोदी से दोस्ती करने वाला शख्स, सुषमा स्वराज जाके उनको पासपोर्ट दिलाने वाली, वो बोलती है हमें ये इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाते हो। अरे जितने देश के लुटेरे के साथी भारतीय जनता पार्टी, वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है। हमें अरे बताओ ना, 80 करोड़ लोगों को क्यों फ्री अनाज दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, नासिर हुसैन नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चंद दिन पहले बोला कितने दिनों तक ये फ्री योजना चलाओगे, कितने दिन इन लोगों को मुफलसी में रखोगे? ये नासिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज है कि 80 करोड़ लोग क्यों फ्री पे जिंदा है? क्या उनके पास रोजगार नहीं है? कौन सा गरीबी उठा दिया? अरे कांग्रेस ने गरीबी उठाई है तो उसका सबूत देते हैं। आपको क्या मालूम किसान क्यों, कितने डैम बनाए आपने जिसने जो लोगों जो किसानों के लिए काम किया है? अरे गरीबी हटाना है तो किसानों को मजबूत बताना हो। लोन देना गुनाह है क्या? लोन देना गुनाह नहीं है, लोन नहीं लौटाना गुनाह है। क्या कोई मकान खरीदे उसे लोन देते तो गुनाह है क्या? अगर वो ना दे तो वो गुनहगार है। लोन से ही इकोनॉमी बढ़ती है। आप क्यों नहीं बताते यूपी क्यों इतना कर्ज ले चुका है? उस पर बताइए 7.8 लाख करोड़ क्यों कर्ज लिया? अगर वो यूपी ना लौटाई वो सरकार, तो वो सरकार डिफॉल्टर है। आप हमें इकोनॉमी पढ़ा रहे हो, आप इकोनॉमी मत पढ़ाओ। आपने गलत तरीके से लोगों को इस देश से जो भगाया उससे बंटाधार हुआ है। आपने इकोनॉमी या जीडीपी का 80 लाख लोगों को फ्री अनाज दे रहे हो आप, और हमें समझा रहे इकोनॉमिक्स का। आप राहुल गांधी को यहाँ पे गाली दे रहे हो। सुन लीजिए अंबेडकर साहब, हाउ डू यू एक्सप्लेन फॉलिंग रूपी? हाउ डू यू, अंबेडकर साहब आपने इकोनॉमिक्स का बहुत सारे, हाउ डू यू एक्सप्लेन फॉलिंग रूपी? मुझे ये भाई साहब को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ। वो पहले सुन लीजिए बोलिए। इंडिया में फूड सिक्योरिटी एक्ट पहले किसने लाया था? कौन से सरकार के कार्यकाल में आया था? ये इनको बताने दो। अरे फूड सिक्योरिटी कांग्रेस ही लाने वाली है, मनरेगा के थ्रू लेके आनी है, रोजगार लेके आने वाली है सारी कांग्रेस। ये देखो इनका नॉलेज देखो इनका। ये अभी बोलते हैं कि मनरेगा के थ्रू लाई है। सुनिए ना, अरे रोजगार, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, अरे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, फूड सिक्योरिटी कांग्रेस ही लेकर आई है। अरे सुनिए, सोनिया गांधी जी ने उनके ऊपर फोर्स करके फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, और उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है। फूड सिक्योरिटी कांग्रेस नहीं लेकर आई, कांग्रेस लेके नहीं आई, कौन लेके? आप लेकर आ रहे? खाने का रोजगार देना गुनाह है क्या? सुनो ना, लोगों को रोजगार, अरे हमने रोजगार भी लाया ना मनरेगा का, उससे नहीं बोलोगे? नहीं, मेरा नॉलेज बहुत है। ये भाई साहब का नॉलेज देखो, आपका नॉलेज बहुत कम है, आपका नॉलेज से बहुत ज्यादा नॉलेज है। मनरेगा के थ्रू हम बड़बड़ करने का नॉलेज है। मनरेगा के थ्रू हमने रोजगार भी पैदा किया, वो क्यों नहीं बोलते हो? उस पे शर्म आती है। मनरेगा का पैसा खा गए, मनरेगा का पैसा खा गए, मनरेगा का पैसा करोड़ लोगों को उसको हमें नॉलेज अनाज बता। क्यों दे रहे हैं? मनरेगा अभी मालूम है कायदा जो मनरेगा का पैसा लौटाना है। विनायक अंबेडकर जी ने ये कहा कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लेकर के आई, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है उसी कानून के तहत मिल रहा है ना सर? करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, हमने नाम रख रहे, नहीं, सुनिए ना, हमने फूड सिक्योरिटी बिल में, सुन लीजिए, फूड सिक्योरिटी, सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाए तो सुन लीजिए। हमने 80 लाख, अरे हमने उस गरीबी वंचितों के लिए रखा कि ताकि भूखा कोई ना मर जाए। अभी क्या आपको मिल रहा है क्या? नहीं, 80 लाख, 80 करोड़ लोग नहीं ले रहे, तो अरे भाई सुन लो, ने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया आपने। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। नहीं, 80 करोड़ लोगों को एक बहुत ही अहम सवाल पूछा भी प्रदीप भाई, आपने भिखारी बना रखा है, आपने बेरोजगार बना रखा है। डॉक्टर मल्होत्रा, आप ही की बात करने वाला हूं मैं। एक मिनट, बोथ ऑफ यू फ्रॉम द एनसीपी एंड फ्रॉम द कांग्रेस। असल में तो आप कांग्रेस ही है ना दोनों, एक एनसीपी या कांग्रेस, असल में है तो कांग्रेस ही। आप प्रदीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा सर, अगर आप उसमें जवाब देना चाहें विनायक अंबेडकर साहब। टुडे द प्राइस ऑफ द डॉलर इज 85 रुपीज 12 पैसा, 85 रुपए 12 पैसे। तो सर
मोदी जी तो 2013 में बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है। अगर आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहें प्लीज। जी, आपको मालूम रहेगा कि जी। बीच में कोरोना का एक बड़ा संकट पूरी दुनिया में आया था। सर। बाद में एक जो बेसिक गुड्स है उसका एक क्राइसिस वर्ल्ड में पैदा हुआ था, जिसको कमोडिटी क्राइसिस बोलते। नहीं, अभी सुधरा नहीं है, अभी भी कमोडिटी क्राइसिस है। उसके बाद में जो बड़े 2 वॉर हुए उससे सप्लाई कंडीशन अफेक्ट हुई है, आपको मालूम है। इस सब के वजह में एक ही इंटरनेशनल करेंसी बची है जो डॉलर है, वो अभी बहुत बढ़त किया है। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए साथ साथ में कि इंडिया का रुपी ये इंटरनेशनल करेंसी बने, इसके लिए हमने अभी 23 कंट्रीज के साथ हमने ये किया है, करार किया है। और बहुत से कंट्री के साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो इंडियन रुपीज में चलता है, आपको मालूम है जी। तो उसका जो है डॉलर बढ़ा है, ये बात आपकी बराबर है। मोदी जी का स्टेटमेंट भी आपका बढ़ा है। तो मोदी जी अपना सम्मान बढ़ाने के लिए रुपया को इंटरनेशनल ट्रेड का करेंसी बनाने के लिए बहुत गहरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी, I'll go to, I think she's been not, Dr. Malhotra has not been talking for a long time. Dr. Malhotra, I just wanted to say on the lighter note that अभी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अभी पॉपकॉर्न के भी जीएसटी बढ़ रहा है, और वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी पॉपकॉर्न पे बढ़ रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा, फर्दर आई टेल यू, छगन भुजबल साहब, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि छगन भुजबल साहब के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है ये हमारे वक्त नहीं हुआ था। शरद पवार ने हमेशा न्याय दिलाया था छगन भुजबल जी को। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ओबीसी के नाम पे छगन भुजबल साहब का टोटल उपयोग कर दिया जरांगे पाटिल वाले इशू में, और जब मंत्री पद देने की बात आई तो छगन भुजबल साहब को बाहर डाल दिया। सुप्रिया सुले, शरद पवार जी दोनों, और आज छगन भुजबल जी ने शरद पवार का बहुत तारीफ किया। हाउ डू यू सी दिस? हाउ डू छगन भुजबल एपिसोड कैसे देखते हो आप? Definitely, I mean, वो it is seen, it is like the mentality, you know, कि बाबा यूज करो, यूज एंड थ्रो वाली चीज हो रही है। हाँ ठीक है, नए लोगों को चांस देना चाहिए वगैरह जो भी है, बट आई थिंक whatever it is, we don't like that, but he was one of the first few people who went with Ajit Dada or that side. So जो भी है, see when छगन भुजबल जी या जो भी सीनियर नेता हमारे साथ थे, तो उनको दिलीप वलसे पाटिल हो, सबको बड़ा सम्मान मिलता था। पवार साहब के बाजू में वो बैठे रहते थे, जो भी चीज थी तो उनको कंसल्ट की जाती थी। So एक पवार साहब has always given mutual respect to people who are working with him. जो भी चीज होती थी, डिस्कशन होता था, कोई भी मीटिंग में हम मतलब पवार साहब के बाजू में ही हमेशा बैठे रहते थे। हम लोग भी मतलब रिस्पेक्ट करते थे उनका। तो वो रिस्पेक्ट वाला कल्चर वो हमारे मतलब एनसीपी शरद पवार में तो डेफिनेटली है। तो ये अभी जैसे बात हुई है, और वो जो बोल रहे हैं कि मतलब मेरे साथ कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, जो ओनली 3 लोग हैं वहां पे जो डिस्कस मतलब डिसीजंस लेते हैं, तो ये मतलब ये चीज मतलब उनके इंटरनल भी क्या चल रहा है ये सब दिख रहा है। Right, thank you very much, all three of you. It's been a great discussion. We've had lots and lots of information coming in. I hope we have a more pleasant discussion when we meet next. Thank you very much, Nasir Saab. Thank you, Dr. Surendra Malhotra. And Vinayak Ambekar Saab, always a pleasure talking to you. Thank you very much. Thank you. Well, there are actually, the Reserve Bank of India says there are 22 countries, not 23 is yet, 22 countries which have bilateral trade in terms of rupee. And places like Bhutan and Nepal, of course, also accept Indian currency as legal tender. So, I hope though he's doing a lot of job, but a lot, as you said, per capita is not affecting per man, per person. प्रदीप जी, ऐसा है कि जब तक आपकी आबादी इतनी बढ़ती रहेगी तो आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है आज की तारीख में जो 7% के आसपास हिलडुल रहा है, 6.5 पे आ जाता है, कभी 6 पे आ जाता है, वो इट हैव टू बी समवेयर अराउंड 14 to 15%। 14-15% का जब तक आपका जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट नहीं होगा तब तक पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर। हम लोग 153 करोड़ हैं, 154 करोड़ हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट just a 3 trillion or 4 trillion economy to, you know, cater to the needs of 154 crore people? Won't work. We'll have to manufacture But sir, one thing that Prime Minister Modi says that अभी जो भी मैं कर रहा हूँ, अभी जो घर दे रहे हैं, जो आवाज दे रहे हैं, जो पाइप का कनेक्शन दे रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, it is the failed policies of the Congress. गरीबी हटाओ has been a failure. Which is absolutely true.
तो आज मुझे 80 करोड़ उसमें प्रदीप जी गलत क्या है? 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा आज है। की तारीख में भी जैसा आवास योजना प्रदीप जी थी। आपको याद होगा जब राज ठाकरे साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी एमएनएस, तब हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था। Yes, yes. राज ठाकरे जी का उनके घर पे बैठ करके, तो राज ठाकरे जी एक बड़ी अहम बात करी थी कि आज भी इतने साल हो गए हैं आज़ादी को और हम आज तक क्या बात कर रहे हैं? सड़क, पानी, घर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, इसी के ऊपर हम लोगों की बातचीत चल रही है। हम लोगों ने किया क्या है लोगों के लिए? हम लोगों ने क्या किया है? भारत को अभी तक तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाना चाहिए था। चाइना को देखिए, चाइना सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स लॉन्ग टाइम अगो। व्हाट आर वी डूइंग? Let's be very clear. I mean, what is it that we are doing? Really and truly speaking, our elections are still being fought on exactly the same issues as earlier. गरीबी हटाओ। आज तक effectively all our schemes are aimed only at गरीबी हटाओ। और क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, हर एक सिर के ऊपर जो है छत होगी, पानी होगा। आज तक आप देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली, आज हमें हो गए हैं 77 साल हो गए, 77 ईयर्स, 78वें साल में हम चल रहे हैं। आज तक हम लोग प्रदीप जी पीने का पानी अब प्रोवाइड नहीं कर पाए लोगों के लिए। तो मतलब किया क्या है हम लोगों ने? No, I'm just telling एक इंसिडेंट से ले रहे थे, it should not be reflecting of एक इंसिडेंट। शरद पवार फैमिली हैज बीन गवर्निंग बारामती सिंस 60-70 इयर्स। यस, आज भी इलेक्शन में जैसे आपने कहा वही मुद्दा लेके जा रहा है कि आपको न्याय दिलाना है, आपको डेवलपमेंट करना है। 40-60 साल से क्या हुआ? दो से बारामती which is why I really admire Arvind Kejriwal. Let me tell you this, which is why he brought about a paradigm shift in the way politics is conducted in the country. आपने जैसे देखा, आपने खुद यहाँ पे तारीफ करी है प्रदीप जी कितनी बार कि भाई देखिए जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई एक्सीडेंट प्रोन आदमी है, इंजर्ड हो गया, वहां जाएगा, उसको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसी भी डिजीज के लिए, किसी भी चीज के लिए उसका इलाज होगा, सरकार पैसा देगी, उसको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्कूल्स को देखिए, पहली सरकार है जिन्होंने वास्तविकता में विद्यालयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी असल में आरएसएस के हैं, क्योंकि ये तो आरएसएस का एजेंडा है कि सबसे पहले आप स्कूल्स को रिफॉर्म कीजिए। यू फर्स्ट रिफॉर्म द स्कूल्स एंड लुक एट द रिजल्ट्स दैट दे आर गेटिंग। द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ आम आदमी पार्टी, दे आर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स और इक्विवेलेंट रिजल्ट्स टू ऑल द प्राइवेट स्कूल्स in Delhi. No wonder the entire school mafia, the education mafia of Delhi is against Arvind Kejriwal. तो मेरा ये कहना है, जहां से भी कहीं से भी कोई अच्छी चीज होती है उसको ले लेना चाहिए। इसी तरीके से आज की तारीख में जैसे इतनी हाईवेज बनी है, इतने रोड्स बने हैं, सब कुछ बना है, उसके अलावा सरकार को ये सब भी तो करना चाहिए ना। आज देख लीजिए सर, अभी जो एक्सीडेंट हुआ कुरला में, आपने खुद ही बताया यहाँ पे भाभा हॉस्पिटल में जो बेचारे इंजर्ड थे, जो बेचारे जख्मी लोग थे, उनको भाग भाग के अपने एमआरआई और अपने एक्सरे के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स में भागना पड़ रहा था। एक तो आदमी इंजर्ड है और उसके बाद ऑटो करके बेचारा कहीं और एमआरआई के लिए जाएगा वो। मतलब क्या है ये? एंड दैट टू वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल द फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई में ये हो रहा है। आई मीन कम ऑन। सो ऑल आई एम सेइंग इज, व्हाट हैव वी रियली अचीव्ड इन दीज लास्ट 77 years? We have achieved a lot, but there's too much of stuff which still needs to be achieved. It is not as if we have done nothing. We have achieved hell of a lot, and there, of course, is the Kurla footage again. Matlab, it's terrible. And by the way, I was just on LBS Mark just the other day, जहाँ से उनकी जो बेस्ट की बस डिपो है, exactly. और मैं आपको बता रहा हूँ प्रदीप जी, हम लोग खड़े थे और जिस तरीके से वो बेस्ट की बस बाहर निकली हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब ये रौनती हुई जाएंगी हर एक को। In a traffic jam, LBS Mark में हमेशा ट्रैफिक जाम होता है। It's a very tiny little place and the और roads तब are भी so आप small इतनी जोर से अपनी बस बाहर निकाल रहे हैं लोगों को डराने के लिए। आपको कोई फिक्र नहीं है कि किसी का ऑटो उड़ रहा है, किसी का टेम्पो उड़ रहा है, किसी का कुछ उड़ रहा है। ये है क्या? मतलब He's trying to fulfill the time जो limit है उनका, from one stop to the other, one depot to the other, which he has to cover within that particular time. And right, and before we go, some very sad news indeed. Our dear old friend and one of the best filmmakers in the country, at least my dear old friend, Shyam Benegal, has just passed away. The man who made Nishant, the man who made Ankur, the man who made which was that lovely movie? It's great. I mean, one of the yes, India. one of the doyens of Indian cinema. बिल्कुल. Bhumika, what a lovely film, which had Smita Patil in it. It was absolutely fun, really and truly wonderful. Absolutely wonderful. And of course, a wonderful man, really and truly an absolutely wonderful man, Shyam Benegal, and the man who is the mentor for Nasiruddin Shah, Om Puri, Shabana Azmi, Anant Nag, and people like that.
He's just passed away at the age of 90. The cinematic world, the world of Bollywood, the world of world cinema is going to be poorer for that. Right? That's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो घंटी अगर अभी तक नहीं किया है, और कृपा करके अपने कमेंट जरूर भेजें साहब. प्लीज डू सेंड मी योर कमेंट्स. वी वुड लव टू रीड व्हाट यू रियली थिंक. दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.